That was related to, I give a brief, will give brief view of the which we have undertaken yesterday and day before yesterday. That was with regard to documentary and oral evidence. I have said that court wants primary evidence, and primary evidence is considered as a direct evidence. That is preferred, or then or documentary evidence is preferred to the oral evidence. This is primary evidence of oral and documentary, and simultaneously documentary evidence is preferred to oral evidence. We have discussed this section 45, 67 and this 73. These were very important section. I think you will get questions in your prelim, and afterwards also when there would be a this your particular evidence act. It is an independent act. It is a independent syllabus or some other in a one paper with the evidence act. Other papers are other acts are also there, or only evidence act is main. In main, by the way, it is a compulsory subject. It is a compulsory subject. First, second is whether there are other subject, other in this paper, evidence act, other acts are also there, or only evidence act. Only evidence act. So such an importance is to evidence act. If it is an independent paper, it would be an independent paper. Then I think a question relating to comparison of signatures, thumb impressions, this writing, etc. would be there. This is my. So we have public document and private documents, and presumption of this certified copies. Certified copies are generally of public record, because sometimes it is in voluminous form and it cannot be produced, and its scanty evidence is allowed by the courts to be produced and admitted in evidence. So we have also that presumption of certain certified copies of public document, that was also in this earlier chapter. Some documents of 30 years old, its genuineness is considered as a presumption. Now next is similarly electronic record, 5 years old, has given similar. Its presumption of genuineness is also regarded by this evidence act. And next is one thing remained, I think, yesterday. This is the presumption of execution of power of attorney. That is yesterday, I think we have not touched it, omitted it. That was a section 85. Presumption as to power of attorney. The power of attorneys are also registered power of attorneys before sub-registrars, and power of attorney can be attested by this notary public. Presumption as to power of the court shall presume that every document purporting to be power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public or any court, judge, magistrate, Indian consul, vice consul, or representative of the central government was so executed and authenticated.
if a power of attorney in due course is produced before a court of law, it's authenticated for having a representation in a suit. If plaintiff is not available, his attorney can appear and he may sign the pleadings and take part in further proceeding. He can also appear on behalf of the plaintiff as a witness if and other he can file applications and for this power of attorney, or court generally do not question. Why court question? Because power of attorney, other party may raise a question that it is not a genuine power of attorney. Generally, that is a rebuttal. If somebody says that it is not a genuine, he is not a genuine person having this power of attorney, that is a rebuttal in presumption. Otherwise, is that court should presume it, shall presume it. The rebuttal is with the other party if dispute that he is not holding a power of attorney duly executed and authenticated. The words are two: executed. You might be knowing earlier when there was our own this Evidence Act, power of attorney as per under Registration Act, the power of attorney attested before a notary public out of state of Jammu and Kashmir were get authenticated from Deputy Commissioner, and we used to charge fees whichever is required to be. Earlier, when we used to this as a sub-registrar working, then we have found that power of attorney, we will not entertain power of attorney attested outside the state, Punjab. We will ask, let this power of attorney, its execution and attestation be get authenticated from the Deputy Commissioner being collector. But main consideration was that payment of this, at that time there was a stamp duty of 75. They pay then, and then Deputy Commissioner authenticate, which was used in execution of documents, and some authentication of the document is where law provides that authentication of the attorney is required. Then is in section, I think this has left very important, they present this power of relating presumption relating to. Yesterday we have also touched the oral evidence, exclusion of oral evidence when there is a document. If some terms and conditions are recorded in the recitals of a document, then preference is document is to be considered. What is referred in that? That is to be considered and as a piece of evidence. No any oral evidence inconsistent and various to the terms and conditions referred in, that was excluded. This was also, I am giving this brief view that we have done earlier. Main was saving, section 100. This was relating to saving of provisions of Indian evidence, Indian Succession Act relating to bills. तो हमने उसमें कहा था nothing would be applicable of the evidence. This Evidence Act, the bills, how those are to be this proved in a court of law, that is to be proved as per the provisions of the Indian evidence, the Indian Succession Act. Nothing would have affect. Evidence Act sometimes requires two witnesses. Proof of the bill is independent of the this Indian Evidence Act. Now, what is to be followed? That is to follow what are the these provisions of Indian Succession Act relating to how the bill is to be proved in a court of law. I have yesterday, I will repeat, very important. Generally,
a bill then is challenged before a court, there would be generally the courts, our civil judges commits mistake in framing of the issues particulars. I have yesterday, I will repeat again, very important. Then burden of proof, you will get another section I will touch is also afterwards. First I am explaining. Bill, whosoever is beneficiary of the bill, in whose favor bill is executed, he has to prove prima facie, it is his duty is, burden is on him to prove that bill was executed beyond any doubt. But it was the whosoever has executed, he was in conscious mind. His doubts is to be required to be cleared by the benefit. Then there would be an issue. तो जनरली फ्रेम इशू बाय द दिस बिल, और उस पर किस पे लगाते हैं, प्लेंटिफ पे, जहां जो हो सकता है कई केसेस में वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, तो पहले किस पे लगाना है इशू को बोला. जब अब यू नो हाउ द इश्यूज आर फ्रेम्ड, आर यू नोइंग दिस in a civil suit how issues are framed? I think practicing lawyer might be knowing. When a plaintiff is there, then a written statement is filed. Afterwards, what is the matter in controversy, then issues are framed with regard to burden of some issues. Is I am referring because we are going to now discuss the burden of proof, all things. So I have touched this. Then a burden of those issues, some issues are on the plaintiff, some issues are on the defendant, and sometimes when issue is upon the defendant, sometimes उसको हम कहते थे उर्दू में तरतीबी शहादत देने, मीन के सप्लीमेंट्री. कई इशू ऐसे होते थे डिफेंडेंट पे होते थे. जनरली क्या है, प्लेंटिफ एविडेंस लीड करेगा, उसके बाद डिफेंडेंट करेगा. तो जो इशू प्लेंटिफ पे है पहले वो प्रूव करेगा और डिफेंडेंट पे है. इशू होते हैं जो जैसे क्वेश्चंस बना लेते हो आप, यार ये मैटर इन कंट्रोवर्सी है तो उसको शार्ट करके जो प्लीडिंग में प्लेंटिफ की प्लीडिंग, डिफेंडेंट की प्लीडिंग, उनको शार्ट करके क्वेश्चंस है, उसी पे जज जो है डिसीजन देता है, उसी पे एविडेंस लीड होती है बाय द रिस्पेक्टिव पार्टीज. तो जो मैं कहने जा रहा हूं, कई बार क्या होता है डिफेंडेंट पे इशू होता है. एक पहले प्लेंटिफ ने अपनी एविडेंस लीड कर दी, तो डिफेंडेंट ने जब लीड करनी है तो कई बार उसको मौका दिया जाता है, किसको, प्लेंटिफ को, कि आप जो इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इशू था, क्या इसके बारे में रिबटल में आप देना चाहते हैं. दिस डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड. तो एक मैं ये भी सिचुएशन बता रहा हूँ, कुछ टाइम प्लेंटिफ इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू लीड एविडेंस इन रिबटल टू द इशू when evidence of the defendant is led with regard to a particular issue. This is also sometimes this situation, this type of burden is also there. Now in bill I have first is afterwards, if some generally you have found that whosoever challenged the bill, obviously the party against whom who is debarred from the right of inheritance. There are three brothers. After death of father, three brothers would get the property by way of inheritance. So what happens sometimes? The father makes a will in favor of one, two are debarred. That will is challenged. You might have noted in the civil litigation. Then that will, if it is favor of one and two, they realize that he was not in conscience then and fraud has been committed, he was not produced before, his signatures are not available and fraudulent, then burden is upon the he who asserts
he has to prove this. That we are coming to that. I am making a ground for touching that. Then burden, but with regard to bills, जैसे उसमें क्या है, बेसिक उसने करना है, लेकिन अगर कोई फ्रॉड एलाइज करता तो इशू किस पे चला जाएगा, डिफेंडेंट पे। जहां हो सकता है प्लेंटिव भी हो सकता है कई बार वो जो, और इसमें प्लेंटिव भी होगा अगर वो बिल को असेल कर रहा है बाय इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय फ्रॉड और समथिंग एल्स, तो जे भी एक उसमें जो बर्डन आएगा, चाहे उसका फ्रॉड उसने साबित करना, लेकिन बेसिक जो कि बिल जो है बियॉन्ड एनी डाउट है, एग्जीक्यूशन हुई है इसकी, नथिंग इज एनीथिंग manipulated, or this is basic burden is to be discharged by the in whose favor bill is. This is with regard to bill, how bill is this proof in a court of law. Now we will come to chapter. Today's chapter is part 3rd. This part 3rd, chapter 7th. This is related to production and effect of evidence. Evidence is produced in a court of law, and what would be its effect? We have earlier touched that what type of evidence is there, or documentary, public, certified. But for some documents are presumption of some execution, and attestation is presumed by the court. There is a word may or shall in. Now we will come to this. Whosoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those exist. जैसे मैंने पहले कहा, he who asserts, if somebody says that a particular house belongs to me, the other B says, A asserts that this house may belong to me, and B say disputed his ownership and possession. This is an example. So then who has to lead, who has to prove? He who assert that the house belongs to me. So then issue would be whether this house belongs to A, then evidence is to be led by A in order to prove. He who asserts is supposed to lead evidence with regard to, तो क्या एविडेंस होगी? उसकी जो सेल डीड होगी, जो उसका पोजेशन होगा, वो भी एक आ जाएगा आगे, वो भी है। तो ये जो when a person is born to prove the existence of any fact, it is said that burden proof lies on that fact. तो इसमें जो असर्ट करेगा उसको उस पे बर्डन लाइज करेगा। जैसे मैंने बताया, इशू भी लगाया कि whether this house belongs to A, तो इशू हो जाएगा, तो उसने एविडेंस लीड करनी है, तो रिवर्टल में वो करेगा, कौन? बी करेगा कि नहीं है, कुछ भी कहेगा। तो दो उसके बाद जब एविडेंस कंप्लीट होगी फिर डिसीजन बनता है कोर्ट का, दैट्स द प्लान। उस पे इशू लगेंगे, उस पे बाद ए डिजायर्ड this there are certain illustrations below this section, you may read. कई बार क्या होता है, देखिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, बिनामी ट्रांजेक्शन होती है, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियस होता है। एक आपको आइडिया दूं मैं, जॉइंट फैमिली में क्या है, जैसे HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसमें क्या होता है कि वो उनका बिजनेस जॉइंट है, अगर बिजनेस है, खेती बाड़ी है, जॉइंट है। तो उस एक कहते थे हम जब इसको पढ़ते थे सक्सेशन जजे वाला, एक होता फैमिली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी पैसा कहां से आया, जो एग्जांपल है ना इसमें, मैं उसको तौर पर कर रहा हूं। तो क्या कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी ए के नाम पे फैमिली ने खरीदी, 4 भाई हैं, बाप है, बेटा है, दूसरे हैं, सिस्टर्स हैं। तो पैसा कहां से आया था? जो जॉइंट फैमिली न्यूक्लियस था, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का था। तो मुस्लिम में भी हो सकता है, जॉइंट तो रहते हैं वो, हम जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है हमारी, इसमें कोई नहीं है, कोई किसी में भी हो सकता है। ऐसे जस्ट उसमें है कि कहां से है, एक कोई फौज में है,
कहीं नौकरी में है, वो पैसा भेज रहा है, एक कोई खेती बाड़ी से पैसा आ रहा है, सारा पैसा आया है, तो उसने कहा यार चल इसका पहले होता था ना हमारे डोमिसाइल इसका है, जो स्टेट सब्जेक्ट है तो इसके नाम पे लिख दो, चलो यार बड़ा है ये लिख दो, बाकी यार फौज में कहाँ लाना है। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो जॉइंट फैमिली की है, चाहे एक के हक में लिखी गई। तो उसमें क्या करते हैं फिर, आपने मोस्टली देखे होंगे सिविल लिटिगेशन होती है, डिक्लेरेशन सूट होता है, उसमें कहते हैं कि नो डाउट ये ए के नाम पे सेल डीड है, लेकिन ये जॉइंट फैमिली नेकर से खरीदा गया है, और साबित करते हैं, एविडेंस लीड होती है, जब एक सिचुएशन अलग बन जाती है, तो भाई दिस प्रॉपर्टी सूट फॉर डिक्लेरेशन, कि ये प्रॉपर्टी जो है, मकान है, घर है, कुछ भी है, खेत है, फील्ड है, सेल डीड नो डाउट इज फेवर ऑफ ए, बट this property belongs to, because this property has been purchased from joint family nucleus। जो कॉमन, और आपको देखा होगा हमारे जॉइंट फैमिली चाहे हिंदू के कहीं भी है, कंसेप्ट नहीं है जॉइंट फैमिली मुस्लिम्स में, लेकिन रहना इकट्ठा है, सारे देते हैं, बाप को पैसे दे देते हैं, माँ को देते हैं, जहाँ जैसा भी जो पहला ट्रेडिशन हमारा सोसाइटी, तो वो उसमें से अगर कोई पैसा, तो वो भी ऐसी भी केस कोर्ट्स में आते हैं, जो ये जनरली क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये मत समझो कि अगर ए के नाम पे सेल डीड है, ये एक्सेप्शन है ना, तो ये ए के नाम से ए कहेगा मेरे नाम पे है तो मैं इसका मालिक हूं, तो इन सिचुएशन में दो दोस्त हैं, यही सिचुएशन दो फ्रेंड्स में भी बन जाती है। कई बार क्या आपने देखा, पब्लिक सर्वेंट होता है, कहता है यार कहाँ परमिशन लेनी है, मैंने उसको परमिशन लेनी पड़ती है, कहां से, गवर्नमेंट से, इसके लिए जे अपनी सेल डीड कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो कहता है अपने दोस्त के नाम, अपनी मदर के नाम, किसी के नाम करते। आप ये जो प्रैक्टिकल बातें मैं कर रहा हूं, तो उसमें प्रॉपर्टी किसकी है, जिसने पैसा तो उसने लगाया है, तो दूसरे के नाम, वो आजकल वो बिनामी में आ जाता है, वो चीजें वो प्रोहिबिट हो गई हैं। ये भी एक, वो उन्होंने कहा बिनामी प्रूव नहीं हो सकता, पहले हम करते थे, जब प्रैक्टिस करते थे यहाँ, जैसे हमारे पास सूट आते थे हम करते थे, लेकिन विद द कमिंग ऑफ दिस बिनामी एक्ट है, उसमें कहा नो, जिसके नाम पे है बिनामी, तो इन ऑर्डर टू जो बिनामी ट्रांजेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए वो एक्ट बनाया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं, ये बातों में बातें निकली। तो ये एक रीजनेबल प्रूफ ऑफ द ओनरशिप, ये जो है ये आप नीचे से पढ़ सकते हो, बॉन्ड टू प्रूव। अभी दूसरा है एक 102, ये आ गया कि जो एग्जर्ट करेगा वो प्रूव करेगा, उस पर बर्डन आ जाएगा, जो भी एक ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइस, ये एक मुझे लगता है ओनस बर्डन रिवर्स हो रहा है, ये पहले वो वाली बात है, द बर्डन ऑफ प्रूफ, देखिए क्या है, of a proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। सुनिए, एक प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बिल की ही बात कर ली, बिल क्या है, नॉन सूटेड कौन हो जाएगा, जिसने सूट किया है, जिसने दावा किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रॉड है, जो जैसे बिल है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, ही इज असेलिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर, और ही इज असेलिंग दैट इट हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन ड्यू कोर्स, लेट इट बी डिक्लेयर्ड नल्टी इन द आइज ऑफ लॉ, और इट इज नॉट इन ऑपरेटिव। आपने देखा होगा डिक्लेरेशन सूट में कैसा लिखा जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल, और उसमें बर्डन किस पे आएगा, प्राइमरी बर्डन जो प्लेंटिफ है, जिसने सूट किया, उसने डिग्री लेनी है, वो एविडेंस लीड करेगा। तो कई बार क्या होता है, दूसरी पार्टी आ जाती है, तो वो कहता है, जैसे एडवर्स पोजेशन का आ गया, तो एडवर्स पोजेशन दूसरी पार्टी ने कर दिया प्लीड कि ये जो प्रॉपर्टी है एडवर्स पोजेशन में ओनरशिप में हो, जहां कोई ऐसा बर्डन है जो उसमें, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई जो अगर एविडेंस नहीं लीड करेगा, चाहे जो शिफ्ट बर्डन किस पे हो गया, दूसरी पार्टी पे हो गया, अगर ये एविडेंस नहीं लीड करेगा तो ही विल बिकम नॉन सूटेड।
तो इस किस्म की सिचुएशन भी आती है जहां पे आपको जो इस किस्म के कि वो कहता है कि जनाब इस पे बर्डन है, लेट हिम प्रूव। और कई बार क्या है, एडवर्स पोजेशन का कोई लैंटम ने एक सूट किया कि ये मेरा एक लाइसेंसी है, मेरा टीडेंट है, जहां ये अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में कोई एक सूट आ गया, लैंटम फाइल। दूसरा कहता है कि एडवर्स पोजेशन में हूं। कौन? दूसरा। तो बर्डन क्या है? पहला किसने लीड करनी है एविडेंस? जो आपको एक मैं ये भी बात बता दूं, जो प्लीड कर रहा है तो ही इज डिसलॉजिंग हिज ओनर, मतलब उसको डिनाई कर रहा है। तो फिर किसने? एडवर्स पोजेशन जो प्लीड करता है, ही हैज टू लीड द एविडेंस फर्स्ट। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है नहीं लीड करना, मैं नहीं करता, ये सिचुएशन बनाई मैंने, तो वो नहीं करता है, जब फ्रॉड वाला जो फ्रॉड अलग करता है, तो प्राइमरी जिसने सूट किया है अगर वो नहीं लीड करेगा तो विल गेट आंसर। पहले चाहे बर्डन पहले उस पे है, वो एविडेंस लीड करेगा, रिबटल में ये करेगा। वो अगर नहीं भी एविडेंस लीड करेगा, कई बार हमने कोर्ट्स में देखे ये इश्यू ऐसे फ्रेम किए होते हैं जैसे मैं सिचुएशन बता रहा हूं, तो वो कहते हैं जनाब भाई तू कहता है जनाब इसने प्रूव करना है। जैसे आपको एक क्रिमिनल साइड में एग्जांपल देता हूं, जैसे रिवर्स ये आपका यूएपी आ गया, एनडीपीएस आ गया, तो जनरली कहेंगे जनाब हमारा ये जो है चलान चार्जशीट है, ये प्रिजम्पशन है अक्यूज के खिलाफ। जैसे अगर आप डीप ना पढ़ो एविडेंस एक्ट को, जैसे बातें अगर थोड़ी नहीं करो, ऐसे सुपरफिशियल करे ना, प्रिजम्पशन है अक्यूज के खिलाफ है ये एविडेंस। तो इसको भाई अगर आप एविडेंस नहीं दोगे प्रोसिक्यूशन की तो साबित क्या करोगे? फिर वाली बातें हैं। प्राइमरी बर्डन जो है ये उसकी बात कर रहा है। प्राइमरी बर्डन नहीं डिस्चार्ज करोगे देन यू वुड गेट नॉन सूटेड। फिर आपकी सूट जब आपकी चार्जशीट अगर प्रोसिक्यूशन कहे जनाब इसको कहो, अक्यूज कर कहो हमारी प्रेजेंट, जैसे आप इस एनआई एक्ट है आपका, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें भी ये चेक आप पढ़ो 43 जो 143, उसमें कहा गया है कि सारी प्रिजम्पशन है कि ओस कि आपने चेक दिया है, चेक इसका मतलब है कि लॉफुल डेट है। दूसरा आ गया लॉफुल डेट है, तो दूसरा है जो स्लिप दी है, नीमो दी है, वो भी प्रूव्ड है, कोई जरूरत नहीं एविडेंस देने की, जो भी है। लेकिन एविडेंस कौन देगा जी? जे देगा रिबटल में, कौन? एक्यूज्ड। भाई अगर एक्यूज नहीं देता है तो इन कागजों के बेस पे, चार्जशीट के बेस पे, कंप्लेंट के बेस पे बाय द ही वुड बी कन्विक्टेड। बताइए, जहां डिग्री देगा कोई सिविल एविडेंस तो लीड करनी पड़ेगी ना। अब जो प्लीडिंग स्पोर्ट में जो भी दावा लेके आया है, सूट लेके आया है, तो ये उसको टच कर 102। नेक्स्ट है 103, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ए पर्टिकुलर फैक्ट। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट to believe in its existence unless it is proved by any law and that proof of that fact shall lie on any other party। ये भी उसी के कंट ए प्रोसिक्यूट बी फॉर थेफ्ट, ये इसकी इलिस्ट्रेशन है। and wishes the court to believe that B admitted the theft to C, he must prove the admission। समझो एक आपके पास एक थेफ्ट केस है, तो ए ने अलेज किया, प्रोसिक्यूशन ने अलेज किया कि बी ने थेफ्ट की है पर्टिकुलर स्टोलन प्रॉपर्टी, जो भी है रूटीन में, तो किसको प्रूव करना है? ए को प्रूव करना है। ए आप इधर लगा लो, आपका प्रोसिक्यूशन लगा लो, जे सीबीआई है, एसीबी है, लोकल पुलिस है, ये प्राइमरी बर्डन तो इनका ही ऊपर है ना। और इसने क्या कहा? ए कह रहा है, जो इलिस्ट्रेशन है, कि उसने कन्फेस किया, एडमिट किया है, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। ए जो सुनिए इलिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, देखो, बी विशेस दैट कोर्ट टू बिलीव एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, ही मस्ट प्रूव इट। ए प्रोसिक्यूट बी फॉर द थेफ्ट
एंड विच द कोर्ट बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। तो वो कहता है कि ये जो थेफ्ट है इसने एडमिट किया, कन्फेशन किया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में डाल दो, विच इज नॉट बिफोर ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाती है जो मैजिस्ट्रेट के पास ना हो, कई बार एक्स्ट्रा जुडिशियल somebody has committed and murder or theft and murder particular he discloses, when उसको होता है भाई यार किसी को अपने सरपंच को पंच यार ऐसा मेरे से मर्डर हो गया, दोस्त होता है उसके पास छोड़ने जाता है, तो वो जो कन्फेशन एडमिशन जो भी है वो किया है दैट अमाउंट्स टू। तो जे यू कहता है कि किसके जे फैक्ट किसने प्रूव करना है, जो अलग करेगा, जो कहेगा कि जनाब उसके पास इसने कन्फेशन किया था विद रिगार्ड द आई हैव कमिटेड दैट, तो फिर वो बर्डन किस पे आएगा, उस जो अलग करता है कि ऐसा कन्फेशन हुआ है, ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, तो दैट इज टू बी आल्सो प्रूव्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस प्रोसीडिंग ऑफ ए केस। बर्डन ऑन प्रूविंग एक्ट ऑफ फैक्ट, जे आ गया। बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। ये इसके प्रूफ एलबी भी होता है। अभी इसके क्या है ना कि थेफ्ट का लगाया और इसने माना भी है, वो आगे से उसने रिबटल में दिया, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द क्राइम ऑफ थेफ्ट, और मैं उस वक्त जब ये अलेज कर रहे हैं थेफ्ट, जैसे मर्डर में प्ली ऑफ एलवी, यू माइट बी नोइंग प्ली ऑफ एलवी, नो डाउट ये वर्डन किस पे है, प्ली ऑफ एलवी का दूसरे पे, किस पे, ही हु assert, जैसे एक्सेप्शन में अपना केस लाना है या अदरवाइज लाना है, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये किस पे है, तो ये बेसिक जो बर्डन है। हाँ, अगर कोई कहता है कि प्राइमरी बर्डन कि ये वहां पे था एट द सीन ऑफ, प्राइमरी तो वही साबित करेगा ना, उसको सिर्फ साबित करना इन ऑर्डर टू सेव किसको, एलबी को, जो एलबी प्ली ऑफ एलबी है क्यों साबित करेगा, लेकिन प्राइमरी अगर उसको सजा दिलवानी है, मर्डर की, थेफ्ट की, किसी ने चोरी की है इसने, वो किस पे आएगी, वो प्रोसिक्यूशन पे है। ये थोड़ा अगर वो नहीं ले देता एविडेंस तब भी प्राइमरी, ये सारा उसी सिलसिले में है कि प्राइमरी वर्डन वो कभी नहीं होता। तो किसी को भाई उसने उसकी प्ली ऑफ एलबी साबित नहीं हुई तो इधर कोई एविडेंस नहीं दी उसकी प्रेजेंस की। देखिए क्या है, आप इसको समझो कि प्ली ऑफ एलबी अरेज कर दी एक्यूज ने, तो मैं उस वक्त कहीं और था, तो प्राइमरी तो साबित करना है ना प्रोसिक्यूशन ने कि भाई जो उस वक्त इसने मर्डर किया है, उससे वेपन आएगा, रिकवरी होगी, उसका कोई कन्फेशन होगा, कुछ भी होगा, तो प्राइमरी वर्डन इज ऑलवेज ऑन द। तो एलवी वाली प्ली उधर है, वो उसकी बट प्रोबेबल ऑफ प्रूडेंस ऑफ दिस, क्या कहते हैं उसको, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे उस पे बर्डन है, लेकिन प्राइमरी बर्डन वो उसी पे रहता है या कि सिविल सूट है या जिससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। जे 103 प्ली ऑफ एलवी, इसके आप इलिस्ट्रेशन पढ़ो, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू प्रूव to be proved in order to enable any person to give evidence or any other fact is on the person who wishes to give such evidence. A wishes to prove a dying declaration. देखिए, by we a must prove first. अगर किसी ने कहा कि ये dying declaration है, इसने बर्बल मेरे पास dying declaration दी थी, particular पहले first duty is he has to suppose to prove that कि ये बंदा डेथ हुई है, उसका पोस्टमार्टम आएगा, कोई भी आएगा, ही इज नॉट, ये फर्स्ट उस पर डिस्चार्ज, ये जनरली डिस्चार्ज करना है ये वाला। ए विश टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट, ए मस्ट प्रूव दैट डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। जैसे सेकेंडरी एविडेंस लीड करने से पहले जहां पे क्या होता है कि कहते हैं जनाब ये कॉपी है, कोर्ट में कॉपी लगा देते, प्राइमरी एविडेंस होती नहीं, तो प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस तब एडमिसिबल होगी फर्स्ट प्राइमरी एविडेंस का, जैसे हमने कहा 66A में कि तब सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकते हो जब प्राइमरी एविडेंस
आप जे प्रूव करते इज नॉट अवेलेबल.